friends, this is Aswani Sadhana Arjun. Friends, we have discussed a very important topic of law of tort in our earlier lecture, and that was strict liability. Strict liability was a very important concept which propounded in a leading case, Relates versus Fletcher, by House of Lords. In that case, it was held that if any person brings or collect any dangerous thing in his or her premises, with the knowledge that if that thing escapes, then it may be very harmful for the society. So, if that thing escapes and injured any person, then it will be the liability of that person who brings or collects the dangerous thing. And it is called strict liability, or we can say it is a concept of no fault theory. No fault theory means a person may be held liable without any fault. The examples of no fault theories are strict liability and absolute liability. We have discussed the concept of strict liability in very detail in our earlier lecture. And today we are going to discuss another example of no fault theory, and that is absolute liability. And the concept of absolute liability also reveals that the Indian judiciary plays a vital role in the development of law of tort, because the decision to propound a concept of absolute liability is a very brave step. So, we are going to discuss the concept of absolute liability in detail. As you can say, the concept of absolute liability was propounded in the case of M.C. Mehta versus Union of India in 1987. In this very case, there was a leakage of oleum gas in Sri Ram Foods and Fertilizers Industries in Delhi. Or we can say there was an industry, that is Sri Ram Foods and Fertilizers in Delhi. And in 1985, the oleum gas leaked, and due to leakage of that particular gas, an advocate who was practicing in 30,000 court was died, and along with many persons injured. So, a writ was brought in the form of PIL. PIL means public interest litigation in the Supreme Court under Article 32 of Indian Constitution. And the main issue before the court was whether Sri Ram Foods and Fertilizers industry may be held liable to provide the compensations to the victims. And at that time, there was a rule of strict liability, by which this particular case
might be sought, or we can say at that time the rule was strict liability, by which the remedy may be provided to the victims. But the judge of this case, P.N. Bhagwati Sahab, was taken a very strong, very brave step in Indian judiciary. And they said that strict liability may be a very good law, but in England scenario, not in India. Because the position of England and India is very different. Mr. Bhagwati was of opinion that the law fulfill the needs of the society, and law must fulfill the need of society, and the needs of society changes due to time and place. The rule of strict liability was propounded in 1868. So, in this very case, Mr. Bhagwati observed that strict liability may be a very good law for England but not for India, because under strict liability there were 5 exceptions, and in Indian scenario all the people will take the benefit of those exceptions. And in India, if the rule of strict liability applicable in this very case, then it is next to impossible to provide the remedy to the victims. So in this very case, Mr. Bhagwati propounded a new concept for India, a new law for India, and that is called absolute liability. Mr. Bhagwati said that if any person established an industry of hazardous or inherent dangerous nature, then it will be the liability of that person to take all the precautions, to take highest safety measures to protect the interest of the society. And if any government provides a power to a person to establish a industry, then law presumes that that person who is going to establish an industry which is of hazardous or inherent dangerous nature, then that person will bear an implied liability if due to that industry, if there is any injury to any person, then that person bears the absolute liability.
Absolute liability means that person is not allowed to say that he is not negligent, or that person is not allowed to say that he has taken all the safety guard measures. Even a person may be held liable whether he is negligent or not negligent, whether he has taken all the safety measures to protect the interest of the society. Whatever the situation may be, if there is any injury to any person in the society, then that industry will be held liable. And the most interesting thing about this case was P.N. Bhagwati observed that if any industry of hazardous nature was established by any person, then it is the sole responsibility of that person to protect the workers of that industry and the persons who are living around that industry. All the persons of the neighbor society and all the persons who are working under the industry should be protected by the industry. So, in the case of MC Mehta, hazardous or inherent dangerous thing, safety measures, if any government permitted to establish that industry, then law will presume that it is implied responsibility of that person to take care of the society or to take all the highly safety measures. And a very important aspect of this case was P.N. Bhagwati Sahab observed that the compensation which is to be provided to the victims depends upon the magnitude and capacity of enterprise. Means, whenever the question arises what amount should be provided to the victims, then the amount or compensation depends upon the magnitude of harm, magnitude of injury, and capacity. Capacity means capacity of enterprises, capacity of owner of the industry. Or we can say it must be a deterrent effect. And deterrent effect means in the form of punishment. Means whenever in the case of absolute liability the compensation will be provided, that will be in the deterrent effect, or we can say that will be in the form of punishment. So this was a leading case in the history of Indian judiciary, MC Mehta versus Union of India. In this very case, the court observed some very important ruling to provide the compensation to the victims. Now, the most important question arises, what was the need to establish
a new concept, that is absolute liability, because at that time we had the concept of strict liability to provide the compensation to the victims. Even then, what was the need before the P.N. Bhagwati Sahab? Because it was a very brave decision. A person was going to overrule the decision of strict liability, and strict liability was a very important rule at that time, propounded by House of Lords in the case of Reliance versus Fletcher. So, if we want to understand what was the reason behind the establishment of that particular rule, we have to understand what was the position of that time. Because Reliance versus Fletcher was established in 1868 and this case was held in 1987, more than 100 years gap. And the P.N. Bhagwati Sahib was of opinion that the scenario of England and India are totally different. So, we have a particular law for the scenario of India. By this reason, Mr. Bhagwati propounded that very concept that is called absolute liability. Means that person will be absolutely liable, or we can say any argument, any plea should not be taken or will not be taken, or that person will not be allowed to take any defense. If any person injured, then it is your liability. Now the most important question arises, and the mostly asked question: what is the difference between strict liability and absolute liability? So we have discussed the concept of strict liability in very detail, and we have discussed today the concept of absolute liability. So it is very easy for us to differentiate between strict liability and absolute liability. So we will discuss the difference between strict liability and absolute liability, and that is very easy because we have understand the concept of strict liability and absolute liability. So this is strict liability and this is absolute liability. The first difference in strict liability and absolute liability: a person may be held liable under absolute liability if that person establishes any hazardous or inherent dangerous industry. But in the case of strict liability, it is not necessary that that must be hazardous or inherent dangers. The word is only dangerous. Any dangerous thing which is brings or collected by the any person, then liability will be strict. So first difference is under absolute liability, hazardous or inherent dangers. Second one, under strict liability, there was a need of escape. Means a person may be held liable only then under strict liability when the injury due to escape of that dangerous thing. For example, it is very joking or illogical.
For example, if there is any factory, then strict liability rule protect that persons outside that factory. But rule of strict liability does not protect those persons who are working in that factory. For example, this is a factory. In this factory, these are dangerous things, and the rule of strict liability will be applicable only when these dangerous things escapes outside the premises of that factory. If these dangerous things do not escape, then rule of strict liability will not applicable, and it is illogical. You are protecting those persons who are living outside the factory, but you are not protecting those persons who are in the factory. So under strict liability there is a need of escape, but under absolute liability no need of escape, because P.N. Bhagwati Sahab propounded that if any person established a establishes an industry of hazardous or inherent dangerous nature, then it will be the sole liability of that person to protect the rights of workers in that factory and those persons who are living outside that factory. So in the case of absolute liability, there is no need to escape. Third, we have discussed that under strict liability there are 5 exceptions, but under absolute liability there is no place for any exceptions. Under strict liability, it is necessary that there must be a non-natural use of land, but under absolute liability, it is meaningless whether the use of land is natural or non-natural. It is immaterial. Means under absolute liability, a person will be held liable whether the use of the land is natural or non-natural. Last, under strict liability, no deterrent, means compensation will be provided not as a punishment, but under absolute liability, the compensation to the victims will be provided as a punishment, or we can say it must be a deterrent effect to provide the compensation. तो फ्रेंड, ये है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमने कल देखा था लास्ट लेक्चर में। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रोपाउंड किया गया था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रोपाउंड किया गया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1987। हुआ क्या था, दिल्ली में एक इंडस्ट्री थी जिसका नाम था श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स। यहां ओलियम गैस का रिसाव हो गया, लीक कर गई, उससे एक वकील साहब और कई लोगों की डेथ हुई और कई नुकसान हुए। तो लोगों ने क्या किया, इन द फॉर्म ऑफ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक केस फाइल किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड एट दैट टाइम this case was decided by the Mr. P.N. भगवती साहब। और P.N. भगवती साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया। ये देखिए, पहली बात तो ये बहुत ही हिम्मत का काम था। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट है इवी जस्ट इवी रिमेडियम, देखिए कितना अच्छा अप्लाई हुआ है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट अपीयर टू बी डन। मतलब न्याय होना चाहिए। फाइनली कोर्ट किसके लिए है? न्याय के लिए।
तो हमें सब दिख रहा है, और अगर न्याय हमें पक्का पता है कि नुकसान हुआ है, न्याय होना चाहिए, और न्याय होने के लिए अगर लॉ सफिशिएंट नहीं है तो नया लॉ बनाइए आप। किसने रोका है आपको? लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए नया काम करने के लिए, बड़ा काम करने के लिए। सोचिए इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो बनाया था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसको ओवररूल करने की हिम्मत दिखाई इन्होंने। और यही नहीं, पीआईएल के भी जो मेन काम है वो पीएन भगवती साहब को जाता है उसका क्रेडिट। तो इसको एज अ पीआईएल भी आप समझ लीजिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। पीआईएल का मतलब होता है एक किसी भी केस लाने का जनरल एक रूल होता है, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मतलब होता है ओनली एग्रीव्ड पर्सन हैज राइट टू मूव टुवर्ड द कोर्ट फॉर रिलीफ। भाई हमको दर्द हुआ तो हम जाए ना, क्योंकि सिविल केसेस में ये तो नहीं होता कोई चला जाए। लेकिन पीआईएल का कॉन्सेप्ट इसका एक्सेप्शन है। वो कहता है कि अगर कोई पर्सन इनकैपेबल है तो उसकी तरफ से कोई दूसरा पर्सन, कोई एनजीओ, मतलब बस ये है कि वो किसी के पर्सनल इंटरेस्ट में ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया अंडर आर्टिकल 32 और कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था कि भाई कैसे इनको रेमेडी दी जाए। उस समय रेमेडी देने के लिए लॉ कौन सा था? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी था। इन्होंने हिम्मत दिखाई और इन्होंने कहा कि देखो समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, और लगभग 100 साल से ऊपर हो गए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का हुए, और वो भी वहां आया है जहां की कंडीशंस, जहां का कल्चर, जहां का सिनेरियो हमसे बिल्कुल अलग है। तो लॉ जो है वो लोगों की जरूरत के लिए है। अगर कोई लॉ लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर रहा है तो उसको ओवर रूल कर दीजिए और वो लॉ लेके आइए जो लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। उन्होंने साफ कहा कि यहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, बल्कि एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेबल होगा, इन्होंने कहा अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी इंडस्ट्री स्टार्ट करता है जिसमें हैजार्डस या इनहेरेंट डेंजरस थिंग आती है। इनहेरेंट डेंजरस का मतलब है कि वो डेंजरस चीज, इनहेरेंट मतलब अपने आप में ही, अपने अंदर ही वो इतना खतरा रखती हो। कोई जहरीली गैस अगर आप इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है, तो क्या है? इनहेरेंट डेंजरस हो जाएगा। बोले अगर ऐसी कोई भी चीज आप रखते हैं तो फिर ये टोटल लायबिलिटी आपकी है, आप अपने रिस्क पे रखते हैं। आप जितना हाईली सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं वो आप लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बल्कि वो बंदा ये कह सकता है भाई हमें तो गवर्नमेंट ने परमिशन दी है तब हमने ये खोली है। तो उस पर भगवती साहब ने कहा था, बोले गवर्नमेंट अगर ये परमिट करती है तो उसके साथ साथ लॉ ये प्रिज्यूम भी करता है कि ये कंडीशनल आपको दी गई है परमिशन। और वो कंडीशन क्या है कि आप हर हाल में जो है इनकी सेफ्टी के मेजर्स रखेंगे, और सब मेजर्स रखने के बाद भी अगर किसी को इंजरी हो जाती है तो वो आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट है, आपको कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर इंजरी हुई है तो आप लायबिल हो, चाहे आप नेग्लिजेंट हो ना हो, चाहे तीसरे आदमी का काम हो, कुछ भी हो, XYZ, यू आर लायबिल फॉर दैट इंजरी। इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने इसमें ये भी कह दी, इन्होंने यहां तक कहा कि देखिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जब आप कंपनसेशन देंगे कोई डिटरेंट इफेक्ट होना चाहिए उसका, वो एज अ पनिशमेंट होना चाहिए कि लगे कि हाँ इनको सजा भी मिली है उस काम की। ये नहीं कि अगर किसी का 100 रुपए का नुकसान हुआ है तो उसको 100 रुपया दिला दो, हाँ 100 का नुकसान हुआ है कम से कम 1000 रुपया दिलाओ, इसे लगे कि हाँ जो है गलत हुआ हमारे साथ, बट उसको हर जाना कायदे का मिलना चाहिए। अब अगर हम बात कर ले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के डिफरेंस की, तो आपको पता है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब हैजार्डस या इनहेरेंट डेंजरस थिंग होगी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के साथ ऐसा नहीं है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में एस्केप कोई जरूरी नहीं है, जबकि आपको पता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एस्केप होना जरूरी है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कोई एक्सेप्शंस नहीं है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में चाहे नेचुरल यूज हो चाहे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो, दैट पर्सन विल बी हेल्ड लायबिल। लेकिन यहां क्या होगा? नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होना चाहिए। यहां पे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? डिटरेंट होगा। यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दो और इसी के साथ केस पढ़े जाते हैं। चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इस केस को अप्लाई किया गया, मतलब इस रूल को अप्लाई किया गया, और इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया। तो हमें नहीं लगता इस टॉपिक में अब कुछ बताने या कोई गुंजाइश रह गई है, क्योंकि मेरे हिसाब से काफी इजी टर्म में आपको समझा दिया गया।
लेकिन अब मजेदार बात तो अब रह गई जो हमें आपसे करनी है, वो क्या है? वो ये है कि ज्यादातर हमें एक गलतफहमी हो जाती है कि एक टर्म आपने सुना होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी। क्या सुना होगा आपने? भोपाल गैस ट्रेजेडी। और सबका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी का आया था, वो आया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में। जबकि आपने देखा कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हमने प्लेस जो लिखा है वो क्या लिखा है? दिल्ली लिखा है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी का किसी तरीके का कोई जिक्र हमने नहीं किया है नहीं? आप लोग भी पानी यानी पी लो भाई। चलिए कुछ बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस लीक डिजास्टर। आपने क्या सुना होगा? भोपाल गैस लीक। अब भोपाल गैस लीक डिजास्टर है तो आपको पता है कि ट्रेजेडी कहां हुई थी? भोपाल में ही हुई थी। यहां पे एक कंपनी थी, UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। भोपाल में एक कंपनी थी, दैट इज UCIL, यूनियन कार्बाइड। और ये किसका पार्ट थी या किसकी सब्सिडियरी थी? UCC, ये थी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन। In Bhopal there was a industry or factory, that is Union Carbide India Limited, which was the part of UCC, Union Carbide Corporation। अब ये दिसंबर 84 की शायद बात है। क्या हुआ था? यहां से एक गैस लीक हुई थी, MIC गैस जो थी, इसकी लीकेज हुआ था। ये मिथाइल आइसोसाइनाइड। इन दिसंबर a gas was leaked, or we can say in December there was a leakage of gas, that is methyl isocyanate, in the company Union Carbide India Limited। और आपको पता है कि इस गैस ने क्या किया? जो गवर्नमेंट का डाटा है वो तो ये कहता है कि लगभग 3000 लोगों की डेथ हुई थी, लाखों लोग उसमें जो है वो इंजर्ड हो गए थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई थी, कितने इंजर्ड हुए थे। इवन इसका ये कहा जाता है कि ये उस समय तक का बहुत बड़ा डिजास्टर माना जाता है इंडस्ट्रियल एरिया में। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ा था कि कई सालों बाद भी जो लोग जिस पोजीशन में पहुंच गए वो सही ही नहीं हो पाए। इवन ये था कि प्रेग्नेंट लेडी पे इसका इफेक्ट ये हुआ था कि जो बच्चे हुए वो भी हैंडीकैप पैदा हुए। उसके बाद बहुत ज्यादा ये डिजास्टर हुआ था।
अच्छा, जो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया गया है, उससे पहले ही ये डिजास्टर हो चुका था। ये जो डिजास्टर था ये उससे पहले हो चुका था। और एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इनके सामने, भगवती साहब के सामने पहले से पता था कि एक तो ये हो ही चुका है, अब दिल्ली में भी हो गया है। तो अगर कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया तो फिर इसको कैसे रोकेंगे हम? इसकी एग्जैक्ट डेट लाइए हम और बता दें आपको दोनों की, क्योंकि इसका कोई बेरेफ तो है नहीं, तो आप जो है फैक्ट याद भी नहीं रहते हैं, याद रहने भी नहीं चाहिए किसी को। तो मेरा ये मानना है कि कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो, फैक्ट जो है वो आपके अपने आप बन जाएंगे। तो हम डेट देख कर आपको बता देंगे। ये भोपाल गैस जो थी ये 2-3 दिसंबर 1984, इसकी डेट आप लिख सकते हैं 2-3 दिसंबर 1984 की बात थी। और जो एमसी मेहता वाले केस में हुआ था लिख लीजिएगा कहीं पे, जो एमसी मेहता का केस था लिख लीजिएगा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था ये 4 और 5 दिसंबर 1985। यानी ये जो एमसी मेहता का केस जो डिसाइड हुआ 1987 में, इसमें जो लीकेज हुआ था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में जो लीकेज हुआ था ओलियम गैस का, वो हुआ था दिसंबर 1985 में, और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1984 में। एमसी मेहता का केस जो दिल्ली वाला था, ठीक है, उसमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। अब ये इसमें बहुत टेक्निकल चीजें हैं, तो सब अगर हम बताएंगे तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये कुछ चीजें इसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी रिलेट करेंगी, तो आगे आप कहीं न कहीं पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा, उसके लेक्चर पढ़े हुए हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे भोपाल गैस ट्रेजेडी की। भोपाल गैस क्या हुआ, ये भोपाल गैस लीक डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी थी, जो किसका पार्ट थी, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन यूसीसी, और ये रजिस्टर्ड कहां थी, यूएसए में। देयर वॉज अ कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड इन भोपाल, part of Union Carbide Corporation and which was registered in USA। USA में ये रजिस्ट्री। अब इस डेट को क्या हुआ कि ये गैस लीक कर गई, इससे ये नुकसान हो गया। अब नुकसान जब हो गया तो इसके लिए कैसे कंपनसेशन हो, क्या हो, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन मजा लेके सुनिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हुआ ये कि अब ये कंपनी रजिस्टर्ड थी कहां, यूएसए में, तो कुछ केस तो इंडिया में आए। लोगों ने क्या किया, एनजीओ वगैरह जो थे उन्होंने कुछ केस तो इंडिया में इसके लिए आए, कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क में भी केस आए, यूएसए में जहां ये था, न्यूयॉर्क में भी केस आ गए। अब न्यूयॉर्क में जब केस आए तो जो यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन था, इसने एक प्ली ली। इसने ये कहा कि भाई इनको केस जो है वो इंडिया में लाना चाहिए, क्योंकि यहां पे इनका लाना जो है वो ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं आ रहा है। इंडिया ने इस पे ये प्ली उठाई कि हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है वो इस मैटर को इतने अच्छे से नहीं रिजॉल्व कर सकती है, और रजिस्ट्रेशन तो इनका यूएसए में ही है, तो हमें लगता है कि यहां हमें ज्यादा रिलीफ मिल जाएगी, इसलिए हम यहाँ केस ला रहा है। तो ये डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, वहां पे एक जज थे कीनन जो जज साहब थे, भाई नाम देख लें हम, कीनन ही है क्या है, हाँ कीनन ही है। तो ये कीनन जो जज साहब थे, इन्होंने अपना जजमेंट दे दिया और इन्होंने ये कहा कि भाई आपका ये केस जो है वो इंडिया में आना चाहिए। क्या कहा इन्होंने, बोले कि आपका केस जो है
वो कहाँ आना चाहिए, इंडिया में आना चाहिए। तो यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी कि भोपाल में एक कंपनी थी जिसमें से गैस का लीकेज हुआ, उससे लोगों को काफी इंजरी हुई। केसेस जो है वो न्यूयॉर्क में लेके आए, क्योंकि कंपनी जो पार्ट जिसका थी, जो मेन कंपनी थी, वो कहाँ रजिस्टर्ड थी, यूएसए में थी। तो इसके लिए क्या हुआ, न्यूयॉर्क में केस फाइल हुए, और न्यूयॉर्क में जब केस फाइल हुए तो न्यूयॉर्क कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई केस आना चाहिए कहाँ, इंडिया में आना चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया इंडिया में। उस एक्ट का नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985। एक एक्ट बनाया इन्होंने कि भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। अब इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट की हेल्प की वजह से जो यूनियन ऑफ इंडिया था उसने क्या किया, इंडिया में केस लाए। और इंडिया में ये केस आएगा तो कहां आएगा, ये केस आया आपका भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज है, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे देन एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे नेचुरल जस्टिस का। और नेचुरल जस्टिस में एक कॉन्सेप्ट होता है नो वन कैन बी जज इन हिज ओन कोर्स, कि कोई पर्सन अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। और इस रूल के कई एक्सेप्शंस हैं। चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हम लोगों ने लिखा था, ये क्या है कि एक ये एक्सेप्शन है उसी का, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया केस लेके आई थी और उसका भी कुछ शेयर था, तो एक्सेप्शन है उसका। लेकिन वो एक अलग बात है, यहां पे आगे तुमने बता दिया आपको। अब देखिए, इंटरेस्टिंग है ये प्रोसेसिंग क्लेम से इन्होंने क्या किया, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटरिम कंपनसेशन मांगा। इंटरिम का मतलब होता है जब तक फाइनल जजमेंट ना आ जाए तब तक ये जो विक्टिम है, जो बेचारे जिनका इलाज हो रहा है और जिनके लोग मर गए हैं, उनके घर वालों को कुछ तो राहत मिले। केस तो सिविल का चलेगा सालों। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड की 350 करोड़। क्या कहा इन्होंने कहा भाई 350 करोड़ रुपया हमको दे दिया जाए जिससे कि विक्टिम्स जो है वो हेल्प हो। कोर्ट ने अलाउ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ठीक है 350 करोड़ रुपए जो है वो मिले विक्टिम्स को। ये केस चला गया अपील में हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये कहां गया, हाई कोर्ट में चला गया। अब हाई कोर्ट में इन्होंने क्या किया, अपील में जो जज साहब थे, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आई, उन्होंने ये सब बातें मान ली, लेकिन 350 करोड़ को कन्वर्ट कर दिया 250 करोड़ में। इन्होंने कहा कि ठीक है 250 करोड़ रुपए विक्टिम्स को मिलने चाहिए। अब इस हाई कोर्ट की अपील के अगेंस्ट में दोनों पार्टी मतलब यूनियन ऑफ इंडिया और यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, ये दोनों कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए अपील में। हाई कोर्ट के बाद दोनों ये मिलके कहां गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। यहां एक और मजेदार बात हम देखते हैं, जैसे कोई बंदा अपील में अगर होता है तो कौन जाएगा। अगर हम सिविल केस की बात करें तो सिविल केस में जब डिक्री आती है तो दो लोग होते हैं, एक डिक्री होल्डर होता है, एक जजमेंट डेटर होता है। डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके फेवर में डिक्री की जाती है, और जजमेंट डेटर वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट में की जाती है। जैसे मान लो ए ने केस फाइल किया बी पे, ठीक, और उसने ये कहा कि
बी ने हमें इंजरी की है तो हमें जो है वो 1,00,000 रुपए का कंपनसेशन मिलना चाहिए। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बी ए को 50,000 रुपए कंपनसेशन दे। ये जजमेंट आ गया। अब इस केस में किसके फेवर में ये जजमेंट हुआ है? ए के फेवर में। किसके अगेंस्ट में हुआ है? बी के अगेंस्ट में। तो ए क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा डिक्री होल्डर और बी क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा जजमेंट डेटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से अपील में कौन जाएगा? तो सबका नहीं, लेकिन कुछ बच्चों की कंफ्यूजन रहता है, वो सीधे सीधे कर देते हैं कि अपील में जाएगा कौन जाएगा? बी जाएगा, क्योंकि किसके फेवर में है? ए के फेवर। जरूरी नहीं है, ये दोनों ही अपील में जा सकते हैं। क्यों? बी इसलिए जाएगा कि भाई 50,000 रुपए क्यों थे जब हमने किए ही नहीं है, जा सकता है। और ये इसलिए जाएगा कि जब 1,00,000 का मेरा नुकसान हुआ है, 50,000 से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम जाएंगे भाई अपील में। क्रिमिनल में भी ये हो सकता है। मान लो इसने कहा कि इसे जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट ने इसको 7 साल की सजा दे दी, तो ये इसलिए जा सकता है कि भाई 7 साल की सजा क्यों है, हमारी माफ होनी चाहिए, हमने तो किया नहीं है। और ये इसलिए जा सकता है कि 7 साल की सजा क्यों है, ज्यादा मिलनी चाहिए। तो यहां पे फिर हम वापस आ जाए अपने पॉइंट पे कि ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और आई। आप कहोगे कि यार सब इंटरेस्टिंग ही बता दोगे क्या? इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये वाकई में थोड़ा सा टेक्निकल है। अब इसको एक स्टोरी की तरह आप देखोगे तब आपको क्लियर होगा कि मतलब अभी तक जितना हमने देखा बहुत इजी चीज है कि भोपाल में 1984 में क्या हुआ था, ये गैस लीक हुई थी। गैस लीक से नुकसान हुआ तो जो कंपनी जिसका पार्ट थी वो कहाँ रजिस्टर्ड थी? यूएसए में। तो कुछ केस आ गए कहाँ? न्यूयॉर्क में। लेकिन वहां पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये केस कायदे में कहाँ आने चाहिए? इंडिया में आने चाहिए। न्यूयॉर्क कोर्ट ने भी यही कह दिया, तो इंडिया में आ गए। इंडिया में कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए 350, हाई कोर्ट में अपील गई 250, दोनों कहीं चले गए। इसी बीच क्या हुआ था, जो यूसीसी था, यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, यूसीसी ने एक ऑफर किया था। यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ऑफर्ड टू प्रोवाइड अ कंपनसेशन टू द विक्टिम्स और offered for a settlement outside the court। यूसीसी ने ये कह दिया था कि हम क्या करेंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे, क्योंकि उधर तो 250 करोड़ की बात आ रही थी, 350 करोड़ जब तक, तभी इनके बीच में इन्होंने ऑफर कर दिया था सेटलमेंट। लगभग डॉलर में इन्होंने कहा था, तो वो 750 करोड़ रुपया बन रहा था इंडियन हिसाब से। तो आप ये कह सकते हो इन्होंने ऑफर किया था कि हम 750 करोड़ रुपए दे देंगे, हम पे आपकी जितनी भी ये प्रोसीडिंग है ये सब आप वापस ले लो। फाइनली ये सेटलमेंट हुआ। और लगभग 750 जो है करोड़ रुपए देने की बात हो गई थी। फिर एक देखो टेक्निकल चीज यहां पे आ गई। जब ये केस हुआ था तो इन पे दोनों प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। दोनों मतलब सिविल एंड क्रिमिनल। अब ये चाह रही थी यूसीसी कि सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि कोर्ट के थ्रू अगर इनको पैसा मिलता, मान लो हाई कोर्ट ने 250 कह दिया था, अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते तो हो सकता है वो 350 कर देती, और कब मिलता, कब रेमेडी मिलती, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी। तो यहां पे ऐसे ये चाह रहा था कि हम पूरा जो है वो क्या हो जाए, बच जाए इन चीजों से। सेटलमेंट हुआ, यूनियन ऑफ इंडिया ने सेटलमेंट कर लिया, लेकिन कंडीशन के साथ सेटलमेंट किया विद द कंडीशन। कंडीशन क्या रखी?
इसने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया ने, कि ठीक है हम सेटलमेंट करते हैं, बट ओनली सिविल प्रोसीडिंग विल बी विथड्रॉन एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग विल कंटिन्यूड। सिविल प्रोसीडिंग हम विथड्रॉ कर लेंगे, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या होगी? चलती रहेगी। हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग विथड्रॉ नहीं करेंगे। इसी बात पे सेटलमेंट हो गया, पैसा मिल गया, उस पैसे से फिर रिसीवर वगैरह बना के हॉस्पिटल और बेड ये सब चीजें स्टार्ट कर दी गई कि उनको रेमेडी मिले। और इधर सिविल प्रोसीडिंग तो हो गई थी विथड्रॉल, लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती रही। 2010 में जजमेंट आया, जिसमें जितने भी इसके जो ऑफेंडर कह सकते हो आप थे, उनको 2 इयर्स का पनिशमेंट दिया गया। और जो मेन इसमें था वो एंडरसन था, और जिसकी 2014 में डेथ हो गई। तो ये पूरा हमारा एक कॉन्सेप्ट है भोपाल गैस ट्रांसटी का। तो आज हमने क्या किया, हमने अपना देखा कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता क्या है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के एसेंशियल्स क्या क्या है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, और भोपाल गैस ट्रस्टी क्या है, पूरा सिनारियो उसका जो है वो कैसे है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और भाई जो है अब आप, क्योंकि लेक्चर ये हम ये नहीं कहेंगे, फिर हम, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने कहा था कि अगर समझ में आए तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये तो समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि इस चीज को इससे ज्यादा इजी भी नहीं बताया जा सकता है। और नहीं तो आप ये कर सकते हो कि जैसे इस पे कम से कम नहीं तो यूट्यूब पे और 10, 12, 15 लेक्चर पड़े होंगे अच्छे अच्छे जो हम बता रहे हैं, तो आप टॉप 4 लेक्चर सुन लीजिए जिसके लाखों व्यूज हैं और जो बहुत अच्छे माने जाते हैं अभी तक, और एक बार उनको सुन लीजिए, फिर साथ में इसको सुन लीजिए। और अगर उन चारों से ये आपको अच्छा लगे तो फिर भाई करो, इसको थोड़ा शेयर करो, जिससे कि अच्छा लगे हमें, और अच्छा लगे तो फिर हम दूसरा टॉपिक अच्छे से जल्दी पूरा स्टार्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो जो है दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं होगा या हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें उतना ही अच्छा लगेगा और हम वैसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। अब आप अपना देख लो भाई, ठीक है? तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। और मेन बात हम हमेशा कहते हैं कि जैसे आदमी कहता है ना कि सबको मत साथ हो, किसी एक को साथ लो। आप कुछ ना कीजिए, अगर आपने अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं किया तो जिंदगी में आपको कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।